Hello everyone, this is Professor Jagdish Mimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning to one and all. Now, today we will start with a new unit or we can say new chapter, that is stack and queue. Prior to that, in the previous video or we can say in the previous chapters, we have seen the lot many sorting techniques. We have gone through the hashing technique and collision hunting mechanisms and its related function with respect to internal sorting and external sorting methods. Today we are going to see about the stack and queue. That is stack and queue both are the ADT, that is known as abstract data type, and that things ADT I have already explained in the very first lecture, or we can say in the very first video I have already explained. You can also go to that video. Now today we will see about a stack data structure first, and afterwards we will see about the queue. Now, if we are talking about the stack data structure, everybody knows the stack. So basically, what it is stack data structure. So stack data structure, it is one of the ADT, call it as abstract data type. What stands for ADT? ADT stands for abstract data type. Why stack is an abstract data type? Because stack is working on a particular principle. On basis of that principle, the information or data or element should be added into the stack or should be deleted from the stack. So we'll see what is that particular principle. So if we are defining a stack, if we are going to define a stack or if we are going to explain the stack, so stack is a linear data structure. What? Stack is a linear data structure. So why stack is a linear data structure? Because in stack, the data are stored in a one sequential order. That is one below the other or one above the other. एक के ऊपर एक डेटा हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक्स कम्स अंडर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Stacks comes under the linear data structure because in linear data structure the data are arranged in a sequential manner. It means that in case of stack, all the data are arranged in a sequential manner. Your stack always will be work on one principle. The principle is last in first out system. LIFO, or we can say first in last out system. LIFO or FIFO. Stack is a linear data structure will be work on a principle of last in first out or first in last out system. So basically what it means last in first out and first in last out system. If we are talking about last in first out, it means that whatever data insert at last position, जो भी डेटा सबसे आखिरी में इंसर्ट होगा that would be out, that will be deleted very first. जो डेटा सबसे आखिरी में आएगा वो डेटा सबसे पहले बाहर आउट हो जाएगा, वो डेटा सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा rather than the previous. Or we can say first in last out. Whatever data inserted first, जो भी डेटा पहले इंसर्ट किया गया है, that data will be out or that data will be deleted last. वो डेटा कब डिलीट होगा? लास्ट में डिलीट होगा. It means that in case of stack, the stack will be working on a principle of last in first out or first in last out system. Everybody got it? What it means this principle? That the data which is inserted lastly, which is deleted first, and data which is inserted very first, that will be deleted at the last position or will be deleted last. In stack,
there are two operations we are performing. Stack में दो operations perform होते हैं. Like on everywhere, we are going to perform two different types of operations, like insertion and deletion. Suppose if we have given a empty container, so stack can be defined as it is a container in which insertion and deletion can be done from one end known as on top of the stack. Similarly, suppose if we're talking about a stack, the stack is nothing but a container. It is a container where you can insert or delete the data from the one end only. From the one end only. आप स्टैक में डेटा जब इंसर्ट करते हो या फिर डिलीट करते हो तो वो सिर्फ एक एंड से होगा. That end will be named as top of the stack, or we can say it is a top pointer. Data will be inserted or deleted. Data अगर insert करते हो तो एक ही end से होगा. Data अगर आप delete भी करते हो तो एक ही end से होगा. That means there is only one door. And that pointer name is top of the stack, or we can say toss, or we can say top pointer or top of the stack pointer. It means that insertion and deletion will be take place on the single end. Insert भी एक end से होगा तो deletion भी एक end से होगा. Because why inserted at the same end as well as deleted from the same end? The reason is it is work on a principle that is last in first out or first in last out system. Because the data which is inserted first will be out last. Data will be inserted last, will be out first. One simple example I will take. Suppose if we are talking about the stack of dishes, when you will go for any parties or any function, wedding functions, when you go for dinner also, on the center table there is a stack of dishes. जो आप डिनर के लिए जाते हो किसी फंक्शन में, आपके सेंटर टेबल पे स्टैक ऑफ डिशेस रखी हुई है. जो डिशेस अरेंज की रहती है, जो डिशेस अरेंज है वो एक स्टैक में अरेंज है. तो वो स्टैक बोलते हैं बिकॉज एवरी डिश इज वन अबाउट द अदर. एक के ऊपर एक आपकी डिश अरेंज होती है. एंड नाउ that stack of dishes will be work on the principle of last in first or first in last out system. Now, how that principle will work on the stack of dishes? If you want to pick a particular dish, or we can say if you want to pick a dish, you have to pick on the topmost dish. सबसे ऊपर में जो डिश है, सपोज 50 प्लेट लगी हुई है, 50 डिशेस लगी हुई है. If you want to go and take a plate, so you have to pick a first dish. You have to pick a first dish or take a first dish. पहला डिश उठाओगे. Then second person will come and second dish will pick up. Then third, then fourth, then fifth, likewise. That means there is no choices at all. There is no choices at all. It means that जिस नंबर पे आपका डिश है, दैट मीन्स जो जैसे आपने डिश रखा हुआ है, दैट मीन्स पहले आपने फर्स्ट डिश रखा, पहले आपने फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पहला डिश है, इसके ऊपर आपने सेकंड रखा है, इसके ऊपर आपने थर्ड चला, इसके ऊपर फोर्थ है, इसके ऊपर फिफ्थ है, इसके ऊपर सिक्स्थ है, लाइकवाइज. दैट मीन्स यहां तक पहुंच गए तो दिस वन इज योर टॉप ऑफ द स्टैक. ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है. दिस वन इज योर टॉप ऑफ द स्टैक. यानी यहां तक डिशेस लगी हुई है. सी, यहाँ तक आपकी डिशेस लगी हुई है, तो दिस वन इज द टॉप ऑफ द स्टैक. ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है. दिस वन इज टॉप ऑफ द स्टैक. यहाँ तक डिशेस है. तो जब आप पहली डिश उठाओगे तो दिस वन डिश विल कम आउट फर्स्ट. ये पहले बाहर निकलेगा, देन ये इसके नीचे वाला बाहर निकलेगा, देन इसके नीचे वाला बाहर निकलेगा, देन इसके नीचे वाला बाहर निकलेगा. दैट मींस जो सबसे पहली डिश रखी थी आपने वो सबसे आखिरी में निकली है, और जो सबसे आखिरी में आपने डिश रखा है वो सबसे पहले आउट हुआ है, पहले बाहर निकला हुआ है. दैट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो सबसे पहले बाहर आया, और जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे एंट्री हुआ था वो सबसे आखिरी में बाहर निकले. That's why we can say stack is always working on the principle of last in first out system or first in last out system. You can see the representation of stack over here. Here is the diagram. You can see over here.
हियर इज अ डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ है, सपोज दिस इज अ स्टैक, एक स्टैक दिया हुआ है, ओके। नाउ स्टैक इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये आपका एक एम्प्टी स्टैक दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपका एक स्टैक है बना हुआ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपका एक स्टैक है। सपोज you want to insert a particular element, so you have to insert, ये स्टैक में जब डालोगे, सो ये आपका पहला डेटा है, दिस इज योर फर्स्ट डेटा। जब सेकंड डेटा डालोगे तो फर्स्ट डेटा डाला, दैट इज दिस इज योर टॉप ऑफ द स्टैक, आपका ये टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है, दैट इज दिस इज योर टॉप ऑफ द टॉप पोजीशन। पहला डेटा डाला, दैट इज यहाँ पे आपका चलेगा, ठीक है। नाउ इसके ऊपर जो आप सेकंड डेटा डालोगे, यहाँ पे सेकंड डेटा डाला, तो आपका ये टॉप एक से इंक्रीमेंट हो गया। पहले टॉप अगर 0 पे होगा, तो ये टॉप आपका 1 पे चले गया होगा। फिर से डेटा आपने डाला, फिर से डेटा आपने डाला, फिर से आपका टॉप एक से इंक्रीमेंट हुआ, फिर से डेटा आपने डाला, फिर से आपका टॉप एक से इंक्रीमेंट हुआ, लाइक दिस, यानी आपका टॉप एक से इंक्रीमेंट होते चलता है जब आप स्टैक में डेटा इंसर्ट करते हो। वैसे ही जब आप स्टैक से डेटा बाहर निकालते हो, डिलीट करते हो, तो पहले आपका टॉप मोस्ट वाला डेटा बाहर निकलता है। तो पहले वाला डेटा बाहर निकला, लेट मी सपोज यहाँ पे आपका टॉप है, यहाँ पे आपका टॉप है, तो पहले ये वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलिमेंट बाहर निकलेगा, ये एलिमेंट बाहर निकलने के बाद आपका टॉप एक से कम होगा, यानी टॉप अभी एक से कम होगा, फिर आपका ये वाला डेटा बाहर आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आपका टॉप फिर से एक से कम होगा, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप ये वाला डेटा निकालोगे, फिर से आपका टॉप एक से कम होगा, फिर आप ये वाला डेटा निकालोगे। लाइकवाइज यू कैन से इन केस ऑफ insertion and deletion, you can say that means whenever you are going to insert the data, your top will be incremented by 1, और जब भी आप डेटा निकालते हो स्टैक से, तो आपका टॉप एक से कम होता है। दैट इज देखिए यहाँ पे आपका टॉप एक से कम होते जाएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ एक से कम होते जाएगा, ठीक है। दैट मींस इन शॉर्ट यू कैन से इंसर्शन ऑपरेशन, जब आप स्टैक में कोई डेटा इंसर्ट करते हो, द नेम इज गिवन एज, इंसर्शन जो ऑपरेशन होता है उसके लिए एक नाम दिया गया है, द नेम फॉर द इंसर्शन इज पुश ऑपरेशन, पुश करना, डेटा को पुश करना। दैट मींस यू हैव टू इंसर्ट समथिंग इनटू द स्टैक, एंड इफ यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द स्टैक, सो दैट डिलीशन ऑपरेशन इज नोन एज अ पॉप ऑपरेशन। डिलीशन को कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है? पॉप बोला जाता है, और इंसर्शन को बोला जाता है पुश ऑपरेशन। दैट मींस जब आप स्टैक में डेटा डालते हो तो आप क्या बोलते हो? यू हैव टू पुश, you have to push the data. Suppose if you want to delete something from stack, so you have to pop from the stack. You are doing the popping operation. और जब आप insert करते हैं, so you are doing the pushing operation. ठीक है? Now here we can see. So in short we can say, while we are pushing the element, जब आप data push करते हो, at that time your top of the stack, or we can say your top pointer will always incremented by 1. पहली डिश, सेकेंड डिश, थर्ड डिश, फोर्थ डिश, टॉप एक से बढ़ते 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 जाएगा ऊपर तक। दैट मींस व्हेन यू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन, टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. व्हेन यू परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन, दैट इज व्हेन यू परफॉर्म द पॉपिंग ऑपरेशन, व्हेन यू वांट टू पॉप समथिंग फ्रॉम द स्टार्ट, सो एट दैट टाइम आपको आपका जो टॉप पॉइंटर है और टॉस पॉइंटर है वो एक से कम होते जाएगा, ठीक है। दैट मींस जब आप डेटा निकालते हो तो आपका टॉप पॉइंटर एक से कम होता है, और दोनों ऑपरेशन एक ही टॉप पे होंगे, ठीक है। दैट मींस दोनों ऑपरेशन कहां होंगे? इट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। दोनों ऑपरेशंस कहां होंगे? आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे होंगे। इट मींस दैट आपका डेटा निकालना भी है तो आपका टॉप ऑफ द स्टैक से होगा, और डेटा डालना भी है तो टॉप ऑफ द स्टैक से होगा। दैट मींस यहीं से डेटा जाएगा और यहीं से डेटा आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। जस्ट ये समझाने के लिए अलग अलग दिखाया हुआ है। तो सगळ्यांना पार्टनर दिले होते, जॉईन केलं, चल म्हणे जाऊ. both the operation, that means both the operations will be performed on the top of the stack. एक ही एंड पे होगा, इंसर्ट भी करना है तो वहीं पे होगा, डिलीट भी करना है तो वहीं से होगा, ठीक है। that means both the operation push and pop will be work on a top of the stack, ठीक है। now second thing, what are the different types of operations are performed on the stack? अगर stack हम लोग implement करते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या operations हो सकते हैं? The very first thing is push operation. The first one is push operation.
अगर सपोज हमने स्टैक बनाया, इफ यू वांट टू, सो पुश ऑपरेशन, दैट इज सपोज इफ यू वांट टू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन, हमने एक स्टैक बनाया, पुश करना है डेटा को इंसर्ट करना, सो व्हेनेवर वी वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट यू नीड टू परफॉर्म द पुश ऑपरेशन। बट जब भी पुश की बात आती है, जब भी पुश ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन, at that time you have to check whether the space is available or not, because whenever you are going to perform the insertion, जब भी आप इंसर्शन की बात करते हैं, at that time always remember this thing, whenever you are going to insert something, जहां पे हम लोग को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट मींस जहां पे भी मुझे डेटा इंसर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक द स्पेस। आपको जहां पे इंसर्ट करना है वहां पे आपको पहले स्पेस चेक करना पड़ेगा, whether स्पेस इज अवेलेबल और नॉट, क्या स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप आपके स्टैक में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, नहीं है तो आपका आंसर आएगा स्टैक इज फुल। मान के चलते हैं कि आपने एक 50 का अरे बनाया हुआ है, एक 50 एलिमेंट का एक स्टैक बनाया हुआ है, दैट मींस 0 to 49, दैट मींस 0 to 49, फॉर एग्जांपल दिस वन इज 49, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपके लोकेशन नंबर है, लाइकवाइज इस तरीके से आपके लोकेशन नंबर है, दिस वन इज द लास्ट लोकेशन नंबर दैट इज 49। नाउ यू कैन सी आपके पास 0 to 49 स्पेस वैकेंट है, आपका स्टैक कितने का है, 50 का है, 0 से स्टार्ट किया 49 तक जाएगा, ठीक है। अभी मान के चलते कि आपके स्टैक में पूरा डेटा है, आपके स्टैक के ये जो सारे लोकेशंस पे डेटा ऑक्यूपाई है, ये सारे लोकेशन में डेटा जो ऑक्यूपाई है, और आपका टॉप यहाँ पे है, मान के चलते कि आपका टॉप यहाँ पे 49 पे, योर टॉप इज ऑन हियर 49 पे आपका टॉप है, यहाँ पे टॉप है आपका, यहाँ पे टॉप है। इसका मतलब जब आप इसके ऊपर नया डेटा इंसर्ट करोगे, सपोज इफ आई वांट टू इंसर्ट वन मोर डेटा, 49 डेटा ऑलरेडी चले गया हुआ है 49 तक, 0 to 49 लोकेशन पूरे फिल है, आई वांट टू इंसर्ट वन मोर डेटा, मुझे फिर से एक डेटा डालना, इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल लोकेशंस आर फिल, 0 to 49 सारे के सारे लोकेशन फिल है। ये आपको कैसे पता चला कि ऑल लोकेशन फिल है? क्योंकि आपने ये चेक किया कि टॉप कहाँ पे है, टॉप 0 पे, टॉप मिडल पे, कहीं तो भी है कि टॉप लास्ट पोजीशन पे है। सपोज आपने 50 एलिमेंट के लिए स्टैक बनाया हुआ है, तो आपको टॉप चेक करना है कि टॉप कहाँ पे है। टॉप अगर लास्ट पोजीशन पे है, यानी टॉप अगर 50 पे है, इट मींस दैट योर स्टैक इज फुल, नो इंसर्शन इज पॉसिबल, पुश ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। So whenever you are going to perform the push operation, at that time you have to check whether your stack is full or not. अगर full है, no insertion is possible. अगर full नहीं है, that means top last position पे नहीं है, इसका मतलब वो 0 पे होगा, बीच में कहीं तो भी होगा, वो कहीं तो भी होगा, that means कहीं तो भी होगा, इसका मतलब last position से कम value, that means 49 पे, तो 49 से कम कहीं तो भी होगा। It means that आपके stack में जगह है and you can now insert the element. That is a push operation. So remember this condition, whenever you are going to push the data into the stack, at that time you have to check the overflow condition, कि आपके स्टैक में जगह है या नहीं है। जगह नहीं है, that means overflow हो गया, और जगह है, that means है, हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा, got the point? Okay, now the next one is popping operation. So basically what is this popping operation? Pop, for example स्टैक में कुछ डेटा है, if you want to delete, pop करना है यानी delete करना, if you want to delete something from the stack, so you need to perform the pop operation. Insert करना है तो push करते हैं, delete करना है तो pop करते हैं। So whenever you are going to perform the pop operation, at that means you are going to delete something from the stack. So whenever you are going to perform the deletion operation or popping operation, जब भी आप pop करते हो या फिर delete करते हो, at that time remember, जहां से डेटा निकालना है पहले वो चेक कर लो कि वहां पे डेटा अवेलेबल है या नहीं है ना। हम लोग सपोज डिनर के लिए गए, सेंटर टेबल पे गए, सेंटर टेबल पे डिश ही नहीं रखी हुई, देयर इज नॉट अ सिंगल डिश अवेलेबल, एंड यू आर ट्राइंग टू पिक अ डिश, यू आर ट्राइंग टू पिक अप द डिश, इज इट पॉसिबल? कुछ भी नहीं है टेबल पे और डिश निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट मींस कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। दैट मींस आप ऐसे जगह से डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हो जहां पे डेटा ही अवेलेबल नहीं है, जहां पे एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट इज नॉट सिंगल डेटा इज प्रेजेंट ओवर देयर। इट मींस दैट अंडरफ्लो कंडीशन, ये कंडीशन को क्या बोला जाता है? अंडरफ्लो कंडीशन। जब आप डेटा निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन डेटा ही अवेलेबल नहीं है, उसको बोला जाता है अंडरफ्लो कंडीशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, whenever you are going to perform the pop operation, whenever you are going to delete something from the stack, so
you have to check always whether your stack is underflow or not. Underflow होगा तो आपका stack से data बाहर नहीं आएगा. Underflow नहीं है, that means we have to remove something from the stack. Got it? Now is empty. So next operation is empty. So it determines whether the stack is empty or not. Is empty. आपका stack empty है या नहीं वो check करना. Empty है या नहीं है कब पता चलेगा आपको? That means for example ये stack है यहाँ पे अभी तक आपने कुछ भी नहीं डाला. That means आपका top जो है ये सपोज TOP जो आपका टॉप है वो सपोज -1 पे है. कहाँ पे है? सपोज मान के चलते हैं कि आपका टॉप -1 पे. इनिशियली टॉप इज ऑन -1. इनिशियली टॉप इज ऑन -1. अगर आपने स्टार्ट 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने अगर स्टार्ट 0 से स्टार्ट किया है तो आपका टॉप ऑलवेज आपको -1 पे पुट करना पड़ेगा. बिकॉज पहला एलिमेंट जब स्टैक में जाएगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0. दैट मींस जब पहला एलिमेंट जाएगा आपका स्टैक में तो आपका टॉप 1 पे चले जाएगा. गॉट द पॉइंट? अगर आपने स्टैक 1 से स्टार्ट किया है तो यू कैन पुट टॉप पॉइंटर ऑन 0. आप 0 पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने अरे 0 से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है. सो आपको टॉप -1 पे रखना पड़ेगा. बिकॉज वी नो जब भी हम लोग स्टैक में डेटा इंसर्ट करते हैं तो टॉप पॉइंटर इससे बढ़ता है. ऑलवेज टॉप पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो टॉप पॉइंटर -1 पे है, इसका मतलब अभी स्टैक में कुछ भी नहीं है. तो एम्प्टी कंडीशन क्या है स्टैक के लिए? स्टैक एम्प्टी कब रहेगा? जब आपका टॉप -1 पे रहेगा और 0 पे रहेगा. दैट इज अ कंडीशन व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी. आफ्टर दैट व्हेन द स्टैक इज फुल, स्टैक फुल कब रहेगा? जब आपका टॉप मैक्सिमम पे रहेगा. अगर आपके स्टैक का साइज 50 है, 0 से आपका स्टैक चालू हुआ है, 0 से आपने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया हुआ है, इट गोस टिल 49. अगर आपका टॉप ऑलरेडी 49 पे पहुंच चुका है, इसका मतलब आपका स्टैक पूरा फुल है. दैट मींस फुल ऑपरेशन. पिक, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन. इट मींस अ पिक, उठाना, ठीक है. लेट मी सपोज इफ टॉप ऑन द 49, तो वी हैव टू ये नंबर पे ये पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, वी हैव टू पिक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. दैट इज करंट टॉप पे क्या वैल्यू है, वी हैव टू पिक दैट एलिमेंट. गॉट इट? आफ्टर दैट काउंट. देन काउंट करना है कि स्टैक में कितने एलिमेंट्स है. इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक. इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक, स्टैक में कितने एलिमेंट है आपको फाइंड आउट करना है. सपोज टॉप आपका 5 पे, तो 5 से नीचे सारे एलिमेंट आपके स्टैक में अवेलेबल है. टॉप आपका 50 पे है, दैट मींस 50 से लेकर 0 तक सारे एलिमेंट्स आपके पास है. क्योंकि टॉप पॉइंटर है, दैट मींस वहां पे आपका टॉप पॉइंटर है, वहां पे आपका हेड है, तो वहां से डेटा आप निकालना स्टार्ट करोगे, वो वाला डेटा आपका निकलने वाला है, करंट वाला डेटा. सो वहां से नीचे में पूरे जितने भी एलिमेंट है उसको आपको काउंट करना है. जो भी काउंट आएगा दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक. गॉट इट? आफ्टर दैट चेंज. So it changed the element at a given position. It changed the element at a given position. How it possible? Suppose if you want to change the element on the 5th position. अगर मान के चलो कि 50 डिश रखी हुई है आपके पास, 50 dishes are present or it is available on the table. 50 डिश है. Is it possible to give your choice? Is it possible to give your choice? 50 डिश रखी हुई है, आप बीच में ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो, आई वांट द पिंक कलर डिश ओनली. मुझे सिर्फ तो पिंक कलर का डिश चाहिए. चलेगा क्या? खींचोगे क्या जाके पिंक कलर का डिश? नो, नॉट पॉसिबल. इफ यू ट्राइंग टू पिक दैट पर्टिकुलर डिश विद कलर पिंक, सो योर स्टैक विल गेट कोलैप्स. पूरा का पूरा स्टैक आपका कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा. चॉइस इज नॉट ऑन योर हैंड because we are working on last in first order first velocity system, and both the operation of push and pop on the stack will be performed on the top of the stack. जो भी ऑपरेशन होगा टॉप ऑफ द स्टैक पे ही होगा. डिश रखनी भी है, डेटा रखना भी है तो टॉप के ऊपर होगा, डेटा निकालना भी है तो टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वही डेटा बाहर आएगा. दैट इज वर्किंग ऑन सिंगल एज. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, दैट मींस इफ यू वांट टू चेंज अ पर्टिकुलर डेटा at the particular position, so it would not be possible. That means directly you can change the data. That means how it is possible. Suppose already 5th number पे 10 stored है, 5वें लोकेशन पे 10 मैंने स्टोर कर दिया. So programmatically I can change the data. I will put stack of 5 is equal to 25. पहले 10 था, मैंने 25 कर दिया. How it is possible? यानी कैसे हुआ कि अगर 50 डिशेस रखी हुई है, मुझे 5 नंबर का डिश चेंज करना है तो पहले उठाकर बाहर रखना पड़ेगा, उसके बाद डिश मुझे चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू डू लाइकवाइज. बट चॉइस इज नॉट ऑन योर हैंड. डेटा निकालना है और डेटा डालना है तो चॉइस आपके हाथ में नहीं है. डालना भी है तो आपको स्टैक के ऊपर में डालना पड़ेगा, और निकालना भी है तो स्टैक के ऊपर वाला डेटा ही निकालना पड़ेगा. यू कैन चेंज द डेटा
but you cannot insert the new data, you cannot delete the data from in between the stack. Got it? Now display का मतलब होता है it is one of the function which is used to print all the elements available in the stack. आपके stack में क्या क्या available है वो display करने के लिए आप display functions का display function को implement कर सकते हो. So these are the different types of operations we can use to implement the stack. These are the operations we can implement on the stack. So I hope everybody is clear with the topic, definition of stack, and what are the different operations performed on the stack. Now we'll see next. We'll see now push operation. How we are going to perform the push operation. Just I have already explained you the steps for push operation. Suppose there is a stack. यहाँ पे देखिए आपको एक empty stack दिया हुआ है. There is an empty stack. एक empty stack given है. आपको जब भी stack implement करना है, so stack can be implemented with the help of two different things. One is linked list implementation and another is array implementation. I will tell you in the further coming lectures what is a linked list representation. Then you will see linked list. At that time I will explain. But what is push and pop operation? So suppose if you want to perform the push operation, suppose यहाँ पे stack है, पहले initially तो आपका stack पूरा empty है. Initially पूरा आपका stack empty है, ठीक है? आपके stack में कुछ भी data नहीं है, ठीक है? कुछ भी डेटा नहीं है. इनिशियली आपका टॉप कहाँ पे -1 पे, इनिशियली आपका टॉप -1 पे. अभी आपको फर्स्ट डेटा डालना है. इफ यू वांट टू इंसर्ट अ वेरी फर्स्ट डेटा, पहला डेटा डालना है. सपोज आई वांट टू इंसर्ट द डेटा, सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टॉप को 1 से बढ़ाना पड़ेगा. टॉप इज ऑन -1, -1 + 1 कहाँ पे जाएगा आपका टॉप 0 पे जाएगा. दैट मींस यहाँ पे टॉप है आपका 0 पे और 0th लोकेशन पे आपने यहाँ पे 10 डाल दिया. ठीक है. नाउ फिर से आपको डेटा पुश करना है. अभी मुझे 20 डालना है, 20 डालना है. तो प्रीवियस टॉप कहाँ पे आपका, यहाँ पे 0 पे था. अभी 0 + 1 1, तो अभी टॉप आपका किस पे चले जाएगा, 1 पे चले जाएगा. और 10 के ऊपर आपने एक नया डेटा डाल दिया 20, 10 के ऊपर आपने 10 चढ़ा दिया. वैसे ही आपने नया डेटा डाला 30, तो पहले 10 था, उसके बाद ऊपर 20 आया, फिर उसके ऊपर 30 आया, तो अभी आपका टॉप 2 पे चले गया. फिर से अभी आपको नया डेटा डालना है 40, तो अभी आपका टॉप 3 पे चले गया. दैट मींस जैसे जैसे डेटा डालते हो तो वैसे वैसे टॉप आपका 1 से बढ़ता है. जैसे जैसे आप डेटा डालोगे तो टॉप आपका 1 से बढ़ेगा और डेटा जैसे निकालोगे टॉप आपका 1 से कम होते जाएगा. एंड व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन? ओवरफ्लो कंडीशन इज नथिंग बट व्हेन हाउ यू विल गेट चेक योर स्टैक इज ओवरफ्लो और नॉट. जो भी आपने साइज का स्टैक लिया हुआ है, आपके स्टैक का साइज सपोज 10 है, तो अगर आपका टॉप 10 पे पहुंच चुका है, इसका मतलब स्टैक में पूरा डेटा अवेलेबल है. टॉप 10 पे कब पहुंचेगा, जब आपने एक एक डेटा इंसर्ट किया हुआ है, तभी जाके आपका टॉप 10 पे पहुंचा है. That means you have to check with the top. Where is the top? टॉप कहाँ पे? मान के चलो टॉप आपका सबसे लास्ट पोजीशन पे है. दैट मींस जितना साइज है, सपोज 10 साइज है, तो अगर आपका टॉप 10 पे या फिर 9 पे, इट मींस दैट योर स्टैक इज फुल. अगर 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक चलेगा, 1 से स्टार्ट किया तो 10 तक चलेगा. अगर आपका टॉप वहां पे, इट मींस दैट योर स्टैक इज फुल. दैट मींस द ओवरफ्लो कंडीशन. So in case of push operation, your top always incremented by 1, and while doing the pushing operation, always you need to check the overflow condition. Okay. Now the next we will see pop operation. Okay, so basically what it is pop operation. So consider, suppose this is a stack. ये आपका stack है. stack में कुछ data elements दिए हुए हैं. Consider it. ठीक है, ये आपका stack है. stack में पहले 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो आपका top यहाँ पे, आपका top यहाँ पे, ठीक है, top 3 पे. Suppose if you want to delete or if you want to pop, if you want to perform the pop operation, तो टॉप होते समय कौन सा डेटा बाहर निकलेगा, जो टॉप पे है. टॉप कहाँ पे, टॉप आपका यहाँ पे 40 पे. तो ये जो 40 डेटा है, जब आप पॉप करोगे तो पहले क्या होगा, पहले 40 बाहर आएगा. 40 बाहर आएगा तो पहले टॉप आपका 3 पे था, अभी टॉप 2 पे चले जाएगा. अभी टॉप कहाँ पे चले जाएगा, 2 पे. दैट मींस टॉप कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये 30 पे आ जाएगा. नाउ 30 पे आ जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू परफॉर्म अगेन डिलीशन ऑपरेशन, सो फिर अगेन टॉप 1 से कम हो जाएगा. सो टॉप आपका कहाँ पे चले जाएगा, फिर पहले 40 बाहर निकला, बाद में 30 बाहर निकलेगा, फिर आपका टॉप कहाँ पे चले जाएगा, 20 पे चले जाएगा. ठीक है. ऐसे करते करते मान के चलते हैं कि फिर आपने 20 बाहर निकाला, अगेन आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर आपका 20 बाहर निकलेगा और फिर आपका टॉप 10 पे आएगा. फिर से आपने पॉप किया, फिर आपका 10 बाहर निकलेगा. ठीक है. एंड फाइनली फिर से आपको पॉप करना है, फिर से आपको पॉप करना है. तो आप चेक करिएगा, पॉप करना है तो whenever you are going to perform the pop operation, check whether the underflow conditions occur or not. यानी जहां से डिलीट करना है वहां पे आपका डेटा है या नहीं है.
नाउ सपोज द स्टैक इज एम्प्टी, देखिए स्टैक पूरा एम्प्टी है, स्टैक पूरा यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है डेटा, आप इसमें से निकालने की कोशिश करो, कुछ निकलेगा क्या? नहीं। सो हाउ यू आर गोइंग टू चेक द एम्प्टी कंडीशन? एम्प्टी कंडीशन कैसे चेक करते हैं? हाउ यू आर गोइंग टू चेक? चेक विथ टॉप, चेक करिएगा कि टॉप -1 पे है क्या, टॉप -1 पे है, अगर टॉप -1 पे इसका मतलब आपके स्टैक में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं, एंड एक टॉप -1 पे नहीं होगा तो आपके स्टैक में डेटा अवेलेबल है, और टॉप आपका -1 पे है तो इसका मतलब आपके स्टैक में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट मींस इट इज अ अंडरफ्लो कंडीशन. So the conclusion is whenever you are going to perform the pop operations, first of all you need to check the underflow condition. स्टैक में डेटा अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करना है, वो किसके साथ चेक करेंगे? टॉप वैल्यू के साथ चेक करेंगे. अगर वो -1 पे या फिर 0 पे तो आपके स्टैक में डेटा अवेलेबल नहीं है. अगर आपने स्टैक 1 से स्टार्ट किया तो यू हैव टू चेक 0, टॉप इज ऑन 0. अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो चेक टॉप विद -1. ठीक है, तो आपका स्टैक अंडरफ्लो है. लेकिन अगर आपका टॉप -1 या फिर 0 पे नहीं है, इसका मतलब आपके स्टैक में डेटा है, यू कैन डिलीट द डेटा फ्रॉम द स्टैक. ओके, और जब भी आप डेटा पॉप करते हो, जब भी आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो एट दैट टाइम आपका टॉप एक से कम होते जाता है. योर टॉप विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 ऑलवेज. ओके, so likewise we have to perform the push and pop operations. So hope everybody understood the concept of stack, what is stack, how stack will work, how push and pop operations will be performed on the stack, and how the different operations are implemented on the top of the stack. Sorry, on the stack, and how top of the stack will be work while pooping it, while performing the pushing and popping operations. Okay, so hope everybody got it, everybody understood everything whatever I have explained today. So thank you one and all. Thank you.